Hello, dear friends. Very warm welcome to all of you at our platform Conceptual Brainstorming Integrated Pathology session. Yes, right now we are going to look for our hemolytic anemia, thalassemia, which is again very important, just like the sickle cell disease. This disorder is very commonly seen along the sea countries, the countries which are near the sea. Okay, that's why it is known as Mediterranean disease, because it is found in the Mediterranean countries, and this disease is near the sea. So that's why it is known as the thalassa. You will see in your Robbins as well as Harsh Mohan, thalassa means sea. This is the Greek letter. Okay, anemia means blood related. Okay, so this is the disease which is commonly seen in countries near the sea. Fine. Yes, you will see the thalassemia prevalence. You will see it is more at the our sea countries region. So here is integration with the community medicine. Can you observe? This thalassemia, it is very commonly seen near the sea country. This is the belt. This green color zone is showing the belt where the thalassemia is common. Getting the point? And you can see India, the white zone which is near the sea, not the our area which is near the Himalaya region. Okay, so the part which is near the sea. Okay, that's why it is thalassa. Thalassa means near the sea, the blood related disorder near the sea, that is a thalassemia. Okay, that's why it is also known as our Mediterranean disease. Yes, you can see the thalassemia prevalence. Okay, thalassemia is very common than sickle cell disease. Can you see sickle cell disease? Yes, and you can look the sickling is very high at this area. Okay, and this area is involving, now it is spreaded to many part, but it is involving our Gondwana region. Yes, Chhattisgarh belt. Okay, yes, our south belt, Andhra Pradesh, Hyderabad, this all region. Okay, so nearby areas they are involved. So remember, but now this sickling is too much spreaded in India also. Okay, so this is your thing which you have to remember. This is also known as the our Mediterranean fever. Okay, that's why this thalassemia is known as also known as, you can say it is also known as the Mediterranean disease. Okay, so we are going to look for this disease thalassemia step by step. So try to understand what is happening. Yes, see here from the very basics. You know, hemoglobin. Yes sir, hemoglobin. So you all are aware that globin, that is our globin chain. Okay, so globin chain synthesis. Yes sir, if there is abnormal formation of globin chain, especially the our beta chain, then it results in sickle cell disease. Okay, so what you have to remember, quality of globin chain is affected. Here
quality of globin chain is affected. That's why this sickle cell disease is our qualitative disorder. Getting the point? And another, you can say, yes, there is decrease synthesis of globin chain. Yes, there is a decreased synthesis of the globin chain that results in our thalassemia. So in this thalassemia disorder, there is a quantity of globin chain is affected. Yes, क्वांटिटी ऑफ, नॉट द क्वालिटी. जितने भी ग्लोबिन चेन सिंथेसाइज हो रहे हैं वो अच्छे हैं, नॉर्मल है, लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है. क्वांटिटी ऑफ ग्लोबिन चेन इज डिक्रीज्ड. ओके, दैट्स व्हाई इट इज अवर क्वांटिटेटिव disorder. So remember, sickle cell disease is qualitative disorder while the our thalassemia is quantitative disorder. एक में क्वालिटी हैम्पर हो रही है, एक में क्वांटिटी हैम्पर हो रही है. गेटिंग द पॉइंट? नाउ हाउ वी कैन डिफाइन अवर this thalassemia? So we can give the definition. First point, yes, this is group of disorder. ये ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है. क्यों सर? कैन यू ऑब्जर्व हियर, इसमें सिर्फ ब्लड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है. ब्लड के इन्वॉल्वमेंट के कारण बोन का इन्वॉल्वमेंट, लीवर का इन्वॉल्वमेंट, यस, स्टमक में भी कुछ एबनॉर्मलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी. यू विल सी दैट देयर इज द एक्सपांशन ऑफ द अवर स्कल. तो ये एक डिसीज नहीं है, इसमें एक सिम्टम नहीं आता. इट इज द ग्रुप ऑफ द डिसऑर्डर. ओके, so what you will say, it is group of disorder. Now what the other points you can remember? Group of, especially you can say the blood disorder. Second point, what you can remember, characterized by the abnormal decreased synthesis of the globin chain, which is characterized by abnormally decreased synthesis of globin chain. तो साथ साथ में नोट्स बनाते चलिए. ओके सर, इसमें जो अमाउंट है ग्लोबिन चेन, अगर 100 सिंथेसिस होने चाहिए तो सिर्फ 50 सिंथेसिस हो रहे हैं. ओके, यस, इट इज ऑल्सो नोन एज अवर कुलीज एनीमिया. यस, इट इज ऑल्सो नोन एज द अवर कुलीज एनीमिया. Also known as our Mediterranean anemia. मेडिटेरेनियन कंट्रीज में इसकी स्टडी की गई थी, स्पेशली थाईलैंड, दिस ऑल द पार्ट. गेटिंग द पॉइंट? Okay, so now we are going to look the etiopathogenesis. So just see here, it's our introductory part. So we are taking the reference from the our great textbook for the pathology, thalassemia. What the important point you can learn? Okay, और किस तरीके से हम इसे फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हैं. सो ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड जस्ट टेक अ रीडिंग एंड मार्क द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. फाइन, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, हेट्रोजेनस डिसऑर्डर. हम देखेंगे इसमें जीन्स दो अलग अलग रहेंगे. ओके, एंड आइदर द अल्फा ग्लोबिन और द बीटा ग्लोबिन चेन विल बी अफेक्टेड. सो वी नो वेरी वेल, थैलीसेमिया दो टाइप के होते हैं, अल्फा थैलीसेमिया और बीटा थैलीसेमिया. वी विल लुक.
ओके यहाँ पर आपको बहुत बढ़िया बायोकेमिस्ट्री का एमसीक्यू रिपीट होता है दैट देयर इज द सिंथेसिस ऑफ द टू अल्फा चेन। आपको पता है हीमोग्लोबिन के अलग अलग टाइप, HbA1, HbA2, दो अल्फा चेन होते हैं, दो बीटा चेन होते हैं। सो अल्फा चेन दे आर सिंथेसाइज्ड एट द क्रोमोसोम नंबर 16, एमसीक्यू मार्क करेंगे। एंड द बीटा चेन्स आर ऑल्सो टू एंड दे आर सिंथेसाइज्ड बाय विच क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 11, एमसीक्यू। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो जाते हैं। दिस इज मेनली द क्वेश्चन फ्रॉम आवर बायोकेमिस्ट्री पार्ट। ओके अब इनके सिंथेसिस में एबनॉर्मलिटी होती है। हियर इट इज गिवन थैलेसा मीन्स सी इन ग्रीक। ओके और ये कंट्रीज के नाम दिए हुए जिसे हमने इमेज में ले लिया है। फाइन, नाउ सी हियर हाउ these are affected by the gene. So just one diagrammatic presentation. Yes, we are going to look for the our different genes. So just from our biochemistry, one quick revision from the biochemistry. See here, hemoglobin types. कौन कौन से हीमोग्लोबिन टाइप थे? डू यू रिमेंबर? 3 टाइप्स हमने स्टडी की थी। एक एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, फाइन सर। सेकेंड फेटल हीमोग्लोबिन, ओके सर। एंड थर्ड अवर एडल्ट हीमोग्लोबिन, ओके सर। ट्राई टू अंडरस्टैंड एम्ब्रियोनिक हीमोग्लोबिन, इसके भी कुछ सब टाइप्स थे। सो फर्स्ट हीमोग्लोबिन अवर पोर्टलैंड, यस, इसमें आपको जीटा 2 गामा 2 चेन देखने के लिए मिलता था। सेकेंड अवर हीमोग्लोबिन गॉवर टाइप 1, ओके, इसमें आपको यस जीटा 2 एप्सिलॉन 2 चेन देखने के लिए मिलता था। और इसी तरीके से हीमोग्लोबिन गावर यस 2 सब टाइप, जिसमें आपको अल्फा 2 एप्सिलॉन 2 चेन देखने के लिए मिलता था। ओके फीटल हीमोग्लोबिन, यस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थैलीसेमिया में आपको फिर से जानना है। इनमें HbF मिलता है, F फॉर फीटल। इसमें आपको अल्फा 2 गामा 2 चेन देखने के लिए मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। ओके एंड अनदर वन एडल्ट हीमोग्लोबिन। सो यू ऑल आर अवेयर, जस्ट वन रिविजन इज देयर। ये 2 टाइप के होते हैं। एक HbA1, यस, जिसमें अल्फा 2 और बीटा 2 चेन मिलता है, जबकि थोड़ा सा अमाउंट आपको HbA2 का भी देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको यस अल्फा 2 डेल्टा 2 चेन देखने के लिए मिलता है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस अवर HbF, इट इज फाउंड इन केस ऑफ आवर फीटस, और ये सिर्फ फीटल लाइफ में, चाइल्डहुड में होता है। याद रखेंगे सिकल सेल और थैलीसेमिया की जो हीमोग्लोबिन है एबनॉर्मल है, वो कब प्रॉपर बनना चालू हो पाते हैं? यस HbA1 HbA2 ये एडल्ट में बनते हैं। तो छोटे बच्चों में HbF होता है। तो अगर पेशेंट में सिकल सेल बीमारी है, अगर पेशेंट में थैलीसेमिया है, तो फीटस एज में वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाती, क्योंकि जो HbF है वो इनकी जिम्मेदारियां संभाले हुए रहता है, ये नहीं बने रहते। सो रिमेंबर सिकल सेल डिसीज एंड एज वेल एज आवर थैलीसेमिया सिंस द आवर बर्थ ये कभी एपियर नहीं होंगे, क्योंकि उस समय HbF प्रॉपर वर्क कर रहा है। लेकिन जैसे ही एज बढ़ता है, HbF की सिंथेसिस खत्म होती है, वैसे वैसे और जैसे जैसे HbA बनना चालू होता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं बन रहा है सिकल सेल के पेशेंट में, तब उनमें सिम्टम्स एपियर होने चालू होते हैं। फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड आवर जेनेटिक पार्ट। यस, सो व्हाट यू टू रिमेंबर, आपका रॉबिन्स क्या कह रहा है, तो इसे हम समझने के लिए अपने बायोकेमिस्ट्री पार्ट में चलते हैं। सी हियर, फिर से हम आपको याद दिला दें, ग्लोबिन चेन, नॉर्मली इसमें आपको अल्फा 2 बीटा 2 दो चेन अल्फा के 2 बीटा चेन दिखाई देंगे। ओके यस, यू नो वेरी वेल, अल्फा 2 दे आर 146 अमाइनो एसिड एंड बीटा 2 दे आर 141 अमाइनो एसिड। गेटिंग द पॉइंट? एक एक पॉलीपेप्टाइड चेन में इतनी चीजें होती। अब हम ये देख रहे हैं कि अल्फा चेन का सिंथेसिस कैसे होता है। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सपोज दिस इज अवर क्रोमोसोम,
ये एक क्रोमोसोम है। कौन सा क्रोमोसोम? दिस इज आवर क्रोमोसोम नंबर 16 एंड इन द सेम वे this is another our chromosome diagrammatic presentation. Okay, so two chromosomes are there. Yes, here is our chromosome रॉबिन्स की हम बातें कर रहे हैं 16। याद रखेंगे एमसीक्यू क्रोमोसोम 16 इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अल्फा चेन synthesis while this is our chromosome number 11 which is responsible for the our beta chain synthesis. So these are the MCQs. Okay, now try to understand ये जो आपका क्रोमोसोम 16 है उसमें दो जीन आपको देखने के लिए मिलेंगे. You will be able to look for the two loci for the alpha chain synthesis. Suppose ये जीन को शो कर रहे हैं. इसके अलावा एक और जीन आपको नजर आएगी which is responsible for the synthesis of our zeta gene. Okay, so try to understand again this parts. Yes, see here क्रोमोसोम नंबर 16 में आपका अल्फा 1 सिंथेसिस करने वाला जीन है, अल्फा 1 जीन और अल्फा 2 जीन. ये दो जीन आपस में मिल करके अल्फा चेन का सिंथेसिस करते हैं. गेटिंग द पॉइंट. इसी तरीके से यहां पर आपका है जीटा चेन. ओके, अकेला जीन जीटा जीन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ द जीटा चेन. ओके, नाउ स्टेप बाय स्टेप इससे आपका थैलीसेमिया का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और रॉबिन्स की चीज़ें, हर्षमोहन की चीज़ें आपको समझ में आएंगी. फाइन, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड क्रोमोसोम 11 में कौन कौन सी चीज़ें लोकेटेड है. तो क्रोमोसोम 11 में जब आप ऑब्जर्व करेंगे इन दैट कंडीशन यू विल लुक देयर इज द अवर बीटा जीन और बीटा जीन एक है. फाइन, सो दिस इज अवर बीटा जीन. ये एक अकेला जीन जो है वो बीटा चेन सिंथेसिस कर रहा है. गेटिंग द पॉइंट. तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि अल्फा चेन और बीटा चेन, अल्फा के लिए दो जीन है, बीटा के लिए एक ही जीन है. ओके, तो ये आपस में मिलकर के अल्फा के जब दो चेन मिले और बीटा के जब दो चेन मिले तो इस तरीके से सिंथेसिस हुआ आपका अल्फा 2 बीटा 2 ग्लोबिन. ओके, तो इसे आपने कहा HbA1. गेटिंग द पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट टॉप लेवल के एमसीक्यू आप यहां से सॉल्व कर रहे हैं. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, और कौन कौन से आपको क्रोमोसोम देखने के लिए मिलते हैं, जीन्स देखने के लिए मिलते हैं. सी हियर इन आवर 11 नंबर क्रोमोसोम देर इज द लोकेशन ऑफ आवर दिस पर्टिकुलर जीन दैट इज डेल्टा जीन. तो यहां पर किसका प्रेजेंस है? डेल्टा जीन का. तो अल्फा के दो चेन मिले और डेल्टा जीन से डेल्टा चेन दो बना. सो इन दिस वे देयर इज फॉर्मेशन ऑफ अल्फा 2 एंड डेल्टा 2 चेन दैट इज नथिंग दैट इज आवर HbA2 टाइप ऑफ द हीमोग्लोबिन. इसी तरीके से अब हम समझते हैं कि इसी हमारे 11 नंबर के क्रोमोसोम में देयर इज लोकेशन ऑफ टू मोर क्रोमोसोम, टू मोर जीन्स. इस क्रोमोसोम में दो जीन है, क्रोमोसोम में दो जीन है. इसका हम क्या नाम दे रहे हैं? दीज आर अवर यस रिमेंबर ए गामा जीन एंड जी गामा जीन. तो इसका नाम क्या है? ए गामा और जी गामा. ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? दीज बोथ आर यूनाइटिंग टू मेक अवर गामा चेन. तो ये गामा चेन बनाते हैं. सो नाउ सी हियर अल्फा चेन और गामा चेन, अल्फा 2 और गामा के दो चेन आपस में मिलते हैं
और क्या बनाते हैं, अल्फा टू गामा टू चेन। ओके सर, अल्फा टू गामा टू, और इसे ही हम क्या कहते हैं, दिस इज अवर HbF, फीटल हीमोग्लोबिन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही सिकल सेल डिसीज और इसके साथ में हमारे थैलीसेमिया के कंडीशन में जितने भी एबनॉर्मलिटीज होती है वो सभी को संभाल के रखता है छोटे बच्चों में। और हाइड्रोक्सी यूरिया, रॉबिन्स का लाइन कहता है हाइड्रोक्सी यूरिया अननोन मैकेनिज्म के थ्रू HbF के सिंथेसिस को हाई रखता है, और इस कारण से वो थैलीसेमिया सिकल सेल डिसीज के पेशेंट को रिलीव करके रखता है, सिकल सेल डिसीज के पेशेंट को रिलीव करके रखता है। लास्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, सी हियर, एक और चेन आपको देखने के लिए मिलती है। यस, हियर यू कैन सी वन मोर चेन इन आवर क्रोमोसोम नंबर 11। इसका नाम है हमारा एप्सिलॉन जीन। दिस इज आवर एप्सिलॉन जीन। ओके, तो इस एप्सिलॉन जीन से एप्सिलॉन चेन का फॉर्मेशन होता है। फाइन सर, और दो जीटा और दो एप्सिलॉन मीन्स यू कैन से जीटा 2 एंड एप्सिलॉन 2, ये आपस में मिलकर हमारे गोवर टाइप 1 का सिंथेसिस करते हैं। सो दे आर मेकिंग अवर गोवर हीमोग्लोबिन। तो इस तरीके से इनका सिंथेसिस होता है। क्यों सर हम इतना सब चीज क्यों देख रहे हैं, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी आर लुकिंग दिस ऑल द थिंग्स। एक तो इससे कई सारे टॉप लेवल के MCQ आप सॉल्व कर सकते हैं, और इनसे अब आपको समझ में आएंगी लाइंस फ्रॉम योर रॉबिन्स एज वेल एज हर्षमोहन। ओके, तो यहां पर अब ये क्लियर कट सारी चीज़ों को लिख दिया है कि बीटा चेन गामा चेन कैसे होते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन आपको प्रॉपरली समझ में आएगा। ओके सर, सो नाउ वी आर मूविंग फॉर द नेक्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग, सी हियर, वी आर गोइंग टू लुक फॉर द अवर अदर पॉइंट्स। अब इस कंडीशन में आपने ये सारी चीज़ें देख ली। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस डिसऑर्डर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द थैलीसेमिया। ओके, सो जस्ट सी हियर, फर्स्ट ईयर में हम क्या पढ़ते थे, इन आवर फर्स्ट ईयर वी वी आर रीडिंग थैलीसेमिया क्लासिफिकेशन, 2 टाइप्स। ओके, अगर मान लो अल्फा चेन की सिंथेसिस कम हो रही, अल्फा चेन सिंथेसिस डिक्रीज्ड, तो इसे हम कहते थे अल्फा थैलेसेमिया। और अगर मान लो बीटा चेन सिंथेसिस कम होता था तो इसे हम कहते थे बीटा थैलेसेमिया। गेटिंग द पॉइंट। अगला इजी वे में फिजियोलॉजी में हम पढ़ा करते थे, अगर मान लो अल्फा थैलीसेमिया है, सिर्फ अल्फा चेन का सिंथेसिस थोड़ा बहुत कम होता था। ओके, तो इसे हम अल्फा थैलीसेमिया माइनर कहते थे। अल्फा चेन सिंथेसिस ही नहीं होता था तो उसे हम अल्फा थैलीसेमिया मेजर कहते थे। इसी तरीके से यस, और बीटा थैलीसेमिया, इसी तरीके से बीटा थैलीसेमिया की हम बात करेंगे। सो बीटा थैलीसेमिया अगेन 2 टाइप्स, यस, बीटा थैलीसेमिया मेजर, यस, पहले हम माइनर लिख लेते हैं और फिर बीटा थैलीसेमिया मेजर। ओके, अल्फा थैलीसेमिया माइनर, यस, देयर इज अ डिक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन, थोड़ा सा ही सिंथेसिस जो है डिक्रीज हुआ है। अल्फा थैलीसेमिया मेजर, रिमेंबर नो सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन। अगर अल्फा चेन का बिल्कुल भी सिंथेसिस नहीं हो रहा है तब आप उसे मेजर कहेंगे। सी हियर अवर बीटा थैलीसेमिया माइनर, इसमें क्या है,
In this situation, there is a decrease beta chain synthesis, while the major there is a no beta chain synthesis. Okay, so this is our classification. Remember this point. Fine. Okay, but now we have to go for the more details. So you can go here. Can you observe the classification, clinical and genetic classification of the thalassemia? You can look here. So this is the classification from our Robbins. Okay, so try to understand this classification. Okay, और ऐसा ही आपको हैरिसन में भी मिलेगा. तो बीटा थैलीसेमिया और अल्फा थैलीसेमिया, आपने देखा कि अल्फा चेन ये कैसे सिंथेसिस हो रहा था. इसके 2 चेन हैं और इसके लिए आपके 4 जीन रिस्पॉन्सिबल हैं. सी हियर, अल्फा चेन. ओके, तो अल्फा इसके 2 जीन हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 2 जीन हैं जो कि 2 अल्फा चेन सिंथेसिस करते हैं. ओके, सो व्हाट यू टू अंडरस्टैंड. यस, अगर हम अल्फा 2 शो कर रहे हैं, बीटा 2 शो कर रहे हैं, ये हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, तो समझने की कोशिश कीजिए 2 अल्फा 2 चेन जो है, यस, इसको हम फिर से अल्फा अल्फा ऐसा लिख सकते हैं, और एक अल्फा जो आपका चेन है, एक अल्फा चेन, उसे अल्फा 1 अल्फा 2 2 जीन सिंथेसाइज कर रहे हैं, अगले को भी अल्फा 1 और अल्फा 2 2 जीन सिंथेसाइज कर रहे हैं. क्योंकि हम अल्फा थैलीसेमिया की बात कर रहे हैं इसलिए बीटा को अभी ड्रॉप करते हैं. गेटिंग द पॉइंट आराम से. तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके क्रोमोसोम्स का इन्वॉल्वमेंट है. टोटल 4 बार इनका इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. फाइन, नाउ सी हियर, अगर मान लो इस पेशेंट में एक जीन में एबनॉर्मलिटी है, ओके, एक जीन जो है अल्फा थैलीसेमिया का वो सिंथेसिस, लेकिन टोटल इसके 2 जीन हैं और 2 जीन जो हैं 2 चेन सिंथेसिस कर रहे हैं. अगर इनमें एबनॉर्मलिटी है और सिर्फ एक चेन सिंथेसाइज नहीं हो पा रहा है, एक जीन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आप इसे किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे. सी हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, सपोज ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा वर्क कर भी रहा है, थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है, ये सिंथेसिस नहीं कर पाया. ओके सर, बाकी जो है उन्होंने अल्फा 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 सिंथेसिस किया. सो दिस इज अवर वन सब टाइप ऑफ द थैलीसेमिया. ये आपको रॉबिन्स में मिलेगा, ये आपको हैरिसन में मिलेगा. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड. यस, आप देख रहे हैं अल्फा थैलीसेमिया, एक अल्फा चेन सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, जीन में गड़बड़ी है, लेकिन बाकी अल्फा 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 क्लियर है. अब बेटा ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस बायोकेमिस्ट्री के जेनेटिक लेवल पे जाएंगे. फिर से मैं आपको बता दूं, अल्फा चेन ओके सर, अल्फा 2 बीटा 2, हम अल्फा थैलीसेमिया की बात कर रहे हैं तो अल्फा पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. 2 अल्फा चेन है और हर अल्फा चेन अल्फा 1 और अल्फा 2 से सिंथेसाइज हो रहा है. गेटिंग द पॉइंट, अल्फा 1 और अल्फा 2 से सिंथेसाइज हो रहा है. यस सर. तो इस तरीके से टोटल 4 बार इनका इन्वॉल्वमेंट है. अगर मान लो कोई एक जीन जो है थोड़ा सा इंपेयरमेंट शो करे तो माइनस से आप शो कर रहे हैं, फिर बाकी बार इसका सिंथेसिस नॉर्मल हो रहा है, तो क्या कोई एबनॉर्मलिटी रहेगी? नहीं सर, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं रहेगी. पेशेंट जो रहेगा वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा. एमसीक्यू, कोई भी आरबीसी की एबनॉर्मलिटी नहीं रहेगी, लेकिन इसमें एक जीन आपका एबनॉर्मल है, दिस पर्टिकुलर वन. आर यू गेटिंग द पॉइंट बेटा? रॉबिन्स की हम बात कर रहे हैं, हैरिसन की हम बात कर रहे हैं, मजाक की बातें नहीं चल रही है. ओके, तो इस पेशेंट में कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये साइलेंट कैरियर के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे.
ओके सर, फाइन। अगली चीज, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर नेक्स्ट थिंग। पेशेंट में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, लेकिन एक क्रोमोसोम एबनॉर्मल है, इसलिए आगे आने वाले जो डॉटर हैं, आगे आने वाले जो सन हैं, उनमें ये जीन जा रहा है। और उसकी शादी अगर मान लो ऐसी किसी पर्सन से हुई, ओके, तो उसमें सेम क्रोमोसोम अगर प्रेसिपिटेट हो गए, तब प्रेसिपिटेशन, डिसीज प्रेसिपिटेशन के चांसेस है। अल्फा थैलीसेमिया ट्रेट की हम बात करते हैं। अगर मान लो अल्फा चेन बन ही नहीं रहा है, एक अल्फा, या तो अल्फा 1 या अल्फा 2, ओके, तो उस कंडीशन में अल्फा चेन का सिंथेसिस ही नहीं हुआ, तो आप माइनस माइनस शो कर रहे हैं। दूसरा अल्फा चेन ठीक प्रेजेंट हो रहा है, ये एशियन कंट्रीज में कॉमन है। यू कैन सी दीज आर ऑल्सो एसिम्टोमेटिक। ये एसिम्टोमेटिक है, क्यों? क्योंकि ये आपका अल्फा थैलीसेमिया माइनर है। दिस इज अवर अल्फा थैलीसेमिया माइनर। तो अल्फा थैलीसेमिया माइनर में आप क्या देखेंगे? यस, एक अल्फा चेन का सिंथेसिस हो रहा है, दूसरा अल्फा चेन का सिंथेसिस नहीं हो रहा है। ब्लैक अफ्रीकन लोगों में भी ये बीमारी पाई जाती है, एशियन में थोड़ी कम पाई जाती है। इसमें क्या होगा? एक अल्फा चेन, इसका एक जीन एबनॉर्मल है, थोड़ा बहुत सिंथेसिस, एक अल्फा चेन का, यस, यानी कि पार्शियल पार्शियल सिंथेसिस हो रहा है। दोनों को ही आप अल्फा थैलीसेमिया ट्रेट या फिर बेटर है अल्फा थैलीसेमिया माइनर कह दीजिए। ओके, अगला HbH डिसीज। HbH डिसीज ये अक्सर हम अपने फिजियोलॉजी में भी पढ़ा करते थे। 3 अल्फा, टोटल 4 बार इनका पार्टिसिपेशन आपको चाहिए ताकि 2 अल्फा चेन बने। तो आप यहां पर देख रहे हैं 1 2 3 बार इसकी एक्टिविटी नहीं हो रही, थोड़ी सी बस एक्टिविटी बन रही है अल्फा की। तो अब डिसीज की सीवियरिटी बढ़ गई। यस, नाउ इट इज सीवियर। ओके, तो इसे हम कहते हैं अल्फा थैलीसेमिया इंटरमीडिया। यस, अब बेटा फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हैरिसन में आपको डिफरेंस मिलेगा। सो दिस इज अवर अल्फा थैलीसेमिया इंटरमीडिया। इसे माइनर नहीं कह रहे हैं, इसे सीवियर नहीं कह रहे हैं, इसे इंटरमीडिएट कह रहे हैं। अब इसी तरीके से हाइड्रोस फिटलिस, आपको याद है इसके ऊपर हमारा फिजियोलॉजी में शॉर्ट नोट आया करता था। हाइड्रोप्स का मतलब होता वाटर, फिटलिस फीटल। तो इसमें क्या होता था? बेबी में पूरा पानी भर जाता था, क्योंकि उसमें आरबीसी ठीक से नहीं बन रहा है, ऑन्कोटिक प्रेशर टोटल डिस्टर्ब हो गए हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर डिस्टर्ब होने के कारण इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड का जो बैलेंस रहता है वो डिस्टर्ब हो जाता था। और इन सभी कारणों से यस, बेबी जो रहता सोलन हो जाता था, इडीमेटस हो जाता था और फैटल कंडीशन आ जाती थी। कैन यू सी क्यों इसमें फैटल कंडीशन आती थी? इसलिए इसे फिटलिस भी कहते हैं। फीटस में मिलता है, फैटल कंडीशन मिलती है। यस, नेगेटिव 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 नेगेटिव, अल्फा चेन बन ही नहीं रहा है, अल्फा चेन बन ही नहीं रहा है, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, कहां से बेबी जिंदा रहेगा? सो नो अल्फा synthesis means you can say the alpha thalassemia major. Are you getting the point? Yes, this is lethal in utero without transfusion. आप इसे ब्लड देकर भी जिंदा नहीं रख सकते। गेटिंग द पॉइंट? यानी कि अब सेकेंड ईयर में बेटा आपको अल्फा थैलीसेमिया को 2 टाइप में नहीं बांटना, इसको 3 टाइप में बांटना है। ओके, इसी तरीके से व्हाट आर द 3 टाइप्स? यस, यू कैन सी हियर अवर अल्फा थैलीसेमिया माइनर, इंटरमीडिएट एंड अवर मेजर। तो अब फर्स्ट ईयर की चीज़ों को भूल जाइए, आपको सेकेंड ईयर की चीज़ों को याद रखना है। फाइन, नाउ सी हियर, और ये चीज़ें आपके फाइनल ईयर में भी रिपीट होंगी हैरिसन में। सी हियर, बीटा थैलीसेमिया की बात करते हैं। बीटा थैलीसेमिया आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 जीन हैं। अब इसका प्रेजेंटेशन देखिए, माइनर। आप यहां पर देख रहे हैं, यहां पर 4 जीन की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, वहां 2 जीन थे, यहां एक ही जीन है। अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजी। सी हियर, बीटा चेन, बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन। आपको पता है अल्फा 2 बीटा 2, दिस इज अवर हीमोग्लोबिन। यस सर, तो बीटा चेन, 2 बीटा चेन है और दोनों बीटा चेन किससे बनेंगे? यस, बीटा, दोनों सेम है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर डिफरेंस था कि अल्फा चेन जो है उसको अल्फा 1 और अल्फा 2 जीन कंट्रोल कर रहे थे, जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 16 में थे। यहाँ पर एक ही बीटा चेन है, 2 बीटा चेन नहीं है, अलग अलग वैरायटी नहीं है। यस, एक ही बीटा चेन है, वहाँ पर भी एक ही अल्फा चेन था, लेकिन जीन 2 अलग थे। यहाँ पर एक ही जीन है, बीटा जीन। इस अकेले बीटा जीन को 2 बार बीटा चेन बनाने हैं। तो यहाँ पर अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। सी हियर, वी आर प्रेजेंटिंग विद द बीटा ओनली। ओके, तो पहले हम माइनर से बात चालू करते हैं।
हेट्रोजाइगस बीटा थैलीसेमिया। अगर मान लो पेशेंट में एक बीटा चेन रहे ही नहीं, एक बीटा चेन की सिंथेसिस हो ही नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम एबनॉर्मल है, तो उसने एक बीटा चेन बनाया, दूसरा बीटा चेन नहीं बनाया, सो बीटा 0 एंड बीटा। ओके, दूसरी चीज कैन यू सी, बीटा प्लस थोड़ा सा बना, ज्यादा नहीं बना, थोड़ा सा बना, और दूसरा चेन नॉर्मल है, नॉर्मल है तो उसे हमने बीटा से रिप्रेजेंट किया, तो इसको हमने क्या कह दिया, माइनर। तो ये जो पेशेंट है वो एसिम्प्टोमेटिक रहेगा विथ माइल्ड और एब्सेंट एनीमिया। आरबीसी एबनॉर्मलिटी आपको दिखेंगी, लेकिन ठीक है, जिंदा रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी थोड़े आपको प्रिकॉशन रखने पड़ेंगे। यस, दिस इज अवर बीटा थैलीसेमिया माइनर। ओके, अगला, अब आप देखिए बेटा यहां पर, यस, इंटरमीडिया, इसमें वेरिएशन होता है, सीवियरिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, तो आप यहां देख रहे हैं क्या, बीटा 0, यस सर। दूसरा बीटा चेन पूरा नॉर्मल नहीं, इसलिए बीटा प्लस से शो कर रहे हैं, ओके सर। अगला वेरिएशन, यस, बीटा प्लस, दोनों बीटा चेन सिंथेसाइज हो रहे हैं, लेकिन दोनों के दोनों नॉर्मल नहीं है, लेकिन सिंथेसाइज हो रहे हैं। अगला वेरिएशन कैन यू सी, बीटा 0 एंड बीटा। ओके, तो यहां पर एक टोटली सिंथेसाइज नहीं हो रहा, दूसरा सिंथेसाइज हो रहा है। इसी तरह बीटा प्लस एंड बीटा, ओके, सेम यू कैन सी, पार्शियल सिंथेसिस हो रहा है, बीटा प्लस, लेकिन एबनॉर्मल है, दूसरा नॉर्मल है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द अवर सीवियरिटी, इट इज सीवियर बट डज नॉट रिक्वायर रेगुलर ट्रांसफ्यूजन, लगातार ब्लड चढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो इसे आपने क्या कह दिया, इंटरमीडिया। फिर उसके बाद बीटा थैलीसेमिया मेजर, तो ये होमोजाइगस बीटा थैलीसेमिया है जिसमें दोनों चेन नहीं है, यस, या फिर एक चेन नहीं है, एक चेन पार्शियली अफेक्टेड है, या फिर दोनों चेन पार्शियली अफेक्टेड है, तो सीवियरिटी के बेसिस में आप इसे डिवाइड करते हैं। फाइन सर। अगर आप हर्षमोहन का टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं तो चलिए हर्षमोहन को भी एक बार हम फॉलो करते हैं। यस, दीज आर द डिटेल क्लासेस, तो बेटा इसको हर चीज को समझते हुए चलो। सो दिस इज अवर थैलीसेमिया, यस, रिड्यूस्ड ग्लोबिन चेन सिंथेसिस, यहां पर भी उन्हीं सारी इंट्रोडक्टरी चीजों को बता रहा है। थैलेसा का मतलब द सी होता है, समुद्र, मेडिटेरेनियन सी, इनका इन्वॉल्वमेंट है, तो इन सारी चीजों को इसने समझाया है। नाउ हियर द क्लासिफिकेशन इज गिवन, सेम क्लासिफिकेशन, so just see here, look at this point, अल्फा थैलीसेमिया। तो आप यहां पर देख रहे हैं अल्फा थैलीसेमिया माइनर, दिस इज अवर इंटरमीडिएट, एंड हियर इज अवर मेजर, जिसे हम हाइड्रोसफिटलिस, HbH डिसीज और अल्फा थैलीसेमिया ट्रेट कह रहे हैं। तो अब आपको HbH डिसीज का भी मतलब समझ में आ गया। यस, इसमें आप हीमोग्लोबिन का काउंट देख रहे हैं, अल्फा थैलीसेमिया ट्रेट में लगभग नॉर्मल है, HbH में 2 से 12 है, और हाइड्रोसफिटलिस में आप देख रहे हैं 3 से 10, बहुत कम है। आपका ये MCQ आता है, हाइड्रोसफिटलिस फीटस अल्फा चेन बन ही नहीं रहा है, तो वहां पर आपके गामा के 4 चेन, यस, बीटा चेन का सिंथेसिस हो रहा है, 2 अल्फा चेन नहीं बन रहा है, उसके जगह में भी आप देखेंगे, यस, बीटा चेन बच्चों में गामा चेन बनता है और अल्फा की जगह भी गामा बनते हैं, तो इस तरीके से 4 गामा चेन मिलते हैं, जिसे हम हीमोग्लोबिन बार्ट्स कहते हैं। फिजियोलॉजी का क्वेश्चन, इसमें डिलीशन ऑफ द 4 अल्फा जीन हो रहे हैं, और ये बेबी जो है वो मर जाता है यूटेरस के अंदर। इसी तरीके से इंटरमीडिया में 3 अल्फा जीन एबनॉर्मल हैं, हीमोलाइटिक एनीमिया, और इसमें आपके 2 अल्फा जीन या 1 अल्फा जीन बस जा रहा है, तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ओके, ब्लड अपीयरेंस, लेकिन हो सकता है एनीमिया ना भी मिले। नाउ सी हियर मेजर, माइनर, इंटरमीडिएट, मेजर, इंटरमीडिएट, माइनर। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि मेजर 2 जीन है, दोनों थैलीसेमिक हैं, तो बीटा थैलीसेमिया, बेटा थैलीसेमिया बोथ आर एबनॉर्मल।
हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत कम है, इसलिए ये पेशेंट जो रहता है वो बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, डेथ हो सकती है। यस, इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट में बहुत सारे मैकेनिज्म हैं, अलग अलग टाइप के जीन्स पाए जाते हैं। यस, बीटा थैलेसीमिया माइनर, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक आपका एबनॉर्मल है और दूसरा जीन जो है नॉर्मल है, तो ये एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं। अब थैलीसीमिया का क्लासिफिकेशन, थैलीसीमिया, ओके सर, दो टाइप, फाइन सर, अल्फा थैलीसीमिया, बीटा थैलीसीमिया, ओके सर। अल्फा थैलीसीमिया 3 टाइप, यस सर। अल्फा थैलीसीमिया माइनर, अल्फा थैलीसीमिया इंटरमीडिएट, अल्फा थैलीसीमिया मेजर। गेटिंग द पॉइंट। इसी तरीके से बीटा थैलीसीमिया को बेटा अब आप डिवाइड करोगे 3 टाइप में, इजी करने के लिए। बीटा थैलीसीमिया माइनर, इंटरमीडिएट एंड अवर मेजर, याद करते चलो। गेटिंग द पॉइंट एवरीबडी, ओके। नाउ सी हियर, अल्फा थैलीसीमिया माइनर, ओके, व्हाट विल हैपन इन दिस कंडीशन। इस अल्फा थैलीसीमिया माइनर में याद रखेंगे 4 जीन हैं, सो देयर इज द 3 alpha genes are normal, okay, total 4 alpha gene activities are there. So what you will remember, yes, that deletion of the 4 alpha gene, actually 4 alpha gene नहीं है, 4 alpha gene activity बोलना ज़्यादा अच्छा है, okay. So what you can remember, yes, in our minor part, what you can say that there is the our 3 alpha genes एक्टिविटी नॉर्मल, इसलिए हम क्या शो कर रहे हैं, प्लस 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 माइनस। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन, ओके। रॉबिन्स में पहले माइनस को इसने शो कर दिया है, बाद में प्लस प्लस को शो किया है। इंटरमीडिएट की अगर हम बात करेंगे, यस, सी हियर, इन दिस सिचुएशन ए सिम्टोमेटिक पेशेंट, ही इज ओनली कैरियर, ये सिर्फ एक कैरियर की तरह काम करता है, फाइन। इंटरमीडिएट की बात करते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि 2 जीन जो हैं वो आपके प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, ओके। इंटरमीडिएट, सो जस्ट सी हियर, इंटरमीडिएट 3 जीन्स, ओके। यहाँ पर एक जीन, रॉबिन्स एक जीन बोलता तो हम एक जीन को ले रहे हैं, 2 जीन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर यस, इंटरमीडिएट गो विद द रॉबिन्स। सो हियर दिस इज अवर यस थैलीसीमिया, यस यस यस, सी हियर, आपका जो रॉबिन्स है उसने 4 टाइप में डिवाइड किया है, ओके। तो ये एक साइलेंट कैरियर है, तो आप इसे बोल सकते हैं, यस यस, हर्षमोन बोथ आर सेइंग द सेम थिंग। So here the 2 alpha genes are abnormal. So what you have to say, या तो इस तरीके की एक्टिविटी आपको मिलेगी या फिर प्लस माइनस इस तरीके का इन्वॉल्वमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट। एक और वैरायटी है जिसको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, दैट इज ओनली द कैरियर, ईजी करने के लिए। Now see here, intermediate, thalassemia intermediate. So what you will say that 3 alpha gene activity abnormal. Here 2 are normal and 2 are abnormal. Okay? तो 3 अल्फा जीन की एक्टिविटी अगर एब नॉर्मल है तो इसे आप किस तरीके से शो कर रहे हैं, यस, यू कैन सी हियर, दिस इज HbH डिसीज माइनस 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 HbH डिसीज, ओके। सो दिस इज अवर प्रेजेंटेशन, माइनस माइनस, ओके। माइनस, लेकिन एक बस नॉर्मल है,
So these are our intermediate patient, severe patient. It is our HbH disease presentation. ओके, ये पेशेंट को आपको ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ेगी, डिसीज इसमें एनीमिया के प्रेसिपिटेट होंगे, एंड आवर अल्फा थैलेसीमिया मेजर, so just look at this situation, our alpha thalassemia मेजर. ओके, तो अल्फा थैलेसीमिया मेजर वाले सिचुएशन में क्या हो रहे हैं, द 4 अल्फा जीन एक्टिविटी एबनॉर्मल, 4 अल्फा जीन की एक्टिविटी एबनॉर्मल है, और इस कारण माइनस 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 माइनस. ओके, सो नो अल्फा चेन सिंथेसिस. और जब अल्फा चेन की सिंथेसिस नहीं हो रही है तो आपको पता है कि बेबी में HbA नहीं बनता, बेबी में HbF बनता है. कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. HbF जो होता है वो अल्फा 2 गामा 2 होता है. ओके सर, अब इस बेबी में नो अल्फा चेन सिंथेसिस in, yes, no alpha chain is getting synthesized in our patient of thalassemia. Okay, major, which thalassemia, alpha, in alpha thalassemia major. तो ये सिंथेसिस जीरो हो रहा है. तो अब क्या होगा कि गामा 2, इसको तो 4 का पॉलीमर बनाना पड़ेगा, तो अल्फा की जगह में गामा 2, इसके पॉलीमर आपस में जुड़ते चले जाएंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग, गामा 4 चेन इज फॉर्म्ड. आपको फिजियोलॉजी का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहा होगा. दिस इज नोन एज अवर एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, बार्ट्स हीमोग्लोबिन. दिस इज अवर बार्ट्स हीमोग्लोबिन. गेटिंग द पॉइंट. और ऐसे बेबी, क्योंकि अल्फा चेन ठीक से नहीं बन पा रहा है आरबीसी के अंदर, सी हियर दिस इज अवर आरबीसी, सपोज ये गामा चेन है, तो गामा के चेन आपस में पॉलीमराइज होकर के आरबीसी का लाइसिस करवा देंगे. सो दिस इज अवर गामा चेन एंड दे विल कॉज आरबीसीज लाइसिस, और इस कारण आपको मिलेगा यस एनीमिया. ओके, और फ्लूइड एबनॉर्मलिटी के कारण सीवियर एनीमिया, बेबी जो है उसमें पानी भर जाता है. यस, दैट्स व्हाई यू विल से हाइड्रोप्स, एंड दिस इज द फीटल सिचुएशन, हाइड्रोस फिटेलिस, और इस कारण बेबी की डेथ हो ही जाती है, आप नहीं बचा सकते. फाइन. सो दिस इज द योर डिफरेंट फैक्ट्स. ओके सर, फाइन. और कुछ चीज़ें हम लर्न करने की कोशिश करते हैं आराम से बेटा, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट के लिए आप पढ़िए. आपका मेडिसिन वाला पार्ट बहुत ईजी होते जा रहा है. आपको लगेगा कि नहीं सर ये बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, लेकिन यही चीज़ें ज़रूरी है जो आपके आगे क्लिनिकल के बर्डन को कम करेंगी, क्योंकि यही चीज़ आपकी पीडिया में आएगी, यही चीज़ आपके हैरिसन में आएंगी. गेटिंग द पॉइंट. ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द अवर मोर फैक्ट्स. सी हियर, बीटा थैलेसीमिया, इसकी हम बात करते हैं. तो बीटा थैलेसीमिया माइनर. ओके, तो बीटा थैलेसीमिया माइनर आप यहाँ पर देख रहे हैं. सी हियर अगेन, मेजर, इंटरमीडिएट एंड माइनर, हमको मेनली रॉबिन्स को फॉलो करना है. सो जस्ट सी हियर माइनर. तो माइनर में बीटा 0, बीटा या बीटा प्लस एंड बीटा वेरिएशन, तो हम इसको और इजी करते हैं. ओके सर, सो माइनर, ओके, बीटा 0 एंड अनदर इज गुड, दूसरा चेन नॉर्मल है. ओके, या फिर एक चेन थोड़ा सा एबनॉर्मल है, दूसरा चेन नॉर्मल है. ठीक है, तो इस तरीके से आपको अलग अलग प्रेजेंटेशन मिल रहे हैं. तो ऐसे सिचुएशन में आप इसे कहेंगे अवर माइनर कंडीशन, एसिम्टोमेटिक रहेगा पेशेंट. सो दिस इज अवर माइनर, ए
सिम्टमेटिक पेशेंट, कोई सिम्टम नहीं है। इंटरमीडिया की जब आप बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा, यस बीटा प्लस, ईजी कीजिए। दोनों के दोनों अफेक्टेड हैं लेकिन टोटली अफेक्टेड नहीं, जीरो नहीं है, यानी बीटा चेन का सिंथेसिस हो रहा है। सो व्हाट यू विल से, यस दिस इज द इंटरमीडिया। कई सारे वेरिएशन हैं, ओके लेकिन हम एक इजी करने के लिए बीटा जीरो और बीटा को लेते हुए चल रहे हैं। सो दिस इज सीवियर, लेकिन ट्रांसफ्यूजन बार बार खून चढ़ाने की जरूरत आपको नहीं पड़ रही है। सो दिस इज आवर कंडीशन, यस विच इज यस इंटरमीडिएट, severe but blood transfusion not regularly required। ओके अब आप यहाँ पर मेजर को लर्न कीजिए। सी हियर, कम टू द मेजर पार्ट। यस अवर बीटा थैलेसीमिया मेजर, तो इसमें क्या होगा, बीटा जीरो। अब बीटा चेन बन ही नहीं रहा है, बीटा चेन की सिंथेसिस ही नहीं हो रही है, तो अब क्या होगा, यू नो वेरी वेल। यस ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर द बीटा जीरो। ये अगर आपका आरबीसी है, ओके सर ये आरबीसी है, तो नॉर्मली क्या होता है, आपको दो अल्फा चेन और दो बीटा चेन दिखाई देते हैं। ओके सर, सो दिस इज आवर नॉर्मल हीमोग्लोबिन सपोज, फाइन। लेकिन इसमें अल्फा चेन नहीं बन रहा है, दिस इज द अल्फा एंड दिस आर द बीटा, दो अल्फा दो बीटा। लेकिन ऐसे केस में बीटा चेन नहीं बनेगा, तो ऐसे पेशेंट में क्या होगा, यस ये हमारा आरबीसी है, इसमें बीटा चेन बन ही नहीं रहा है, सिर्फ अल्फा अल्फा, तो अल्फा अल्फा आपस में पॉलीमर बना लेंगे, सो यू विल गेट अल्फा 4 चेन। और ये पॉलीमर फॉर्म जो होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते, दे कॉजेस हीमोलाइसिस। ओके सो दे कॉजेस हीमोलाइसिस, आरबीसी का मेम्ब्रेन स्टेबल नहीं रह पाता, टूट जाता है, सो दैट्स वाई इट इज प्रेसिपिटेटिंग द हीमोलाइटिक एनीमिया। और ऐसे पेशेंट में आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिक्वायर्ड, पेशेंट इज वेरी सीवियर एंड मोस्ट प्रोबेबली द डेथ इज पॉसिबल। कब तक ब्लड चढ़ाएंगे, ओके और समझने की कोशिश कीजिए, ब्लड भी आप जब चढ़ाते हैं, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब आप इसकी ईटीओ पैथोजेनेसिस आराम से समझ सकते हैं, ईटीओ। अब अगर मान लो आपने ईटियोलॉजी समझ ली, तो अब आप पैथोजेनेसिस बहुत आराम से समझ सकते हैं बेटा। इसीलिए आराम से पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो, कॉन्सेप्ट बना के पढ़ो, टाइम लगेगा लेकिन एक बार कॉन्सेप्ट बन जाएगा, एक बार नोट्स बन जाएगा, फिर सिर्फ आपको रिवीजन करने की जरूरत है, फिर आप भूलेंगे नहीं। नाउ कम टू दिस ब्यूटिफुल डायग्राम ऑफ आवर रॉबिन्स। ओके सर, आराम से इंजॉय द ईच बाइट ऑफ द नॉलेज। देखो बेटा यहाँ पर ये आपको एक नॉर्मल इरिथ्रोब्लास्ट दिख रहा है, यस सर, न्यूक्लियस है मतलब प्रिकर्सर सेल है, इसमें आपको अल्फा 2 बीटा 2 दिख रहा है, कैन यू सी, दो अल्फा येलो कलर, दो बीटा रेड कलर सपोज। ओके सर, अब ये नॉर्मल इरिथ्रोब्लास्ट है, वो नॉर्मल आरबीसी बनाता है, फाइन सर, लेकिन किंतु परंतु रिड्यूस्ड बीटा चेन सिंथेसिस, अगर बीटा चेन की सिंथेसिस कम हो रही है तो एक्सेस में अल्फा ग्लोबिन चेन बनेगा। फिर से मैं आपको बोल दूं बेटा, ये डिटेल क्लासेस है, बुक को सामने ओपन रखो, बुक को फॉलो करते चले जाओ, बुक में मार्किंग करते चले जाओ, और यही डायग्राम, यही कॉन्सेप्ट आपके सेंट्रल इंस्टीट्यूट एग्जाम्स में आते हैं। उस दिन आप याद करोगे, अरे वाह ये रॉबिन्स तो मैंने पढ़ी हुई थी, हमारे जो डायलॉग्स हैं, हमारे जो क्लासेस हैं वो याद आएगा, अच्छा ये क्लास में हमने ऐसा पढ़ा था, ऐसा पढ़ा था। ये नोट्स आपको याद आएंगे जो खुद आप अपने हाथों से बना रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, एंजॉय द ईच बाइट ऑफ द नॉलेज। यस, अल्फा चेन बहुत ज्यादा बन रहा है, तो आप देख रहे हैं येलो कलर का बीटा चेन, बुक ने क्या बताया, येलो कलर का बीटा चेन, रेड कलर का अल्फा चेन, तो आप देख रहे हैं बीटा चेन कम बन रहा है, तो नॉर्मल एचबीए नहीं बन पा रहा है,
सिर्फ और सिर्फ अल्फा चेन बन रहे हैं जो कि पॉलीमर बना ले रहे हैं, तो इनसॉल्युबल अल्फा ग्लोबिन एग्रीगेट आपको देखने के लिए मिल रहा है। एग्री एवरीबॉडी? ओके सर, अब हम समझते हैं ये कहां बन रहा है, बोन मैरो में बन रहा है, रेड बोन मैरो में। यस सर। अब ये रेड बोन मैरो नॉर्मल इरिथ्रोब्लास्ट तो बना नहीं पा रहा है, सो दिस इज नोन एज इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस। हाँ सर, इरिथ्रोपोएसिस जो है वो नॉर्मल नहीं हो रहा है, आरबीसी नॉर्मल नहीं बन रहा है, क्योंकि ये सारे सेल्स जो हैं, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो इनसॉल्युबल अल्फा चेन है, तो आप अपने बुक में ऐसा बनाइए, ये क्या करेंगे, दे विल ब्रेक द मेम्ब्रेन ऑफ द आरबीसी, तो ये हीमोलाइसिस हो जा रहा है, दे आर कॉजिंग हीमोलाइसिस। ओके सर, नाउ सी हियर, जब इसका हीमोलाइसिस हो गया तो क्या हो रहा है, इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस। अब इस इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस को ठीक करने के लिए विल कम टू द अवर अदर पॉइंट, लेकिन यहां पर आगे देखते हैं, एनीमिया होगा। बिल्कुल सर, अगर इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस तो एनीमिया होगा। अब एनीमिया अगर मान लो हुआ तो इसको करेक्ट करने के लिए आप खून चढ़ाते हैं, पहले आप न्यूट्रिशन अच्छा किए, आयरन फोलिक एसिड का आपने टेबलेट दे दिया, ठीक है, गुड डाइट दे दिया, पानी अच्छे से पीने के लिए बोला आपने, सब कर लिया, नहीं ठीक हो रहा है पेशेंट, तो बेटा ब्लड ट्रांसफ्यूजन तो करना ही पड़ेगा पेशेंट की जान बचाने के लिए। ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप देते जा रहे हैं। ओके, अब एनीमिया है तो टिश्यू हाइपोक्सिया आपको मिलेगा, अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कम हो जाता है तब भी टिश्यू हाइपोक्सिया मिलेगा, तो इरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ेगा, इरिथ्रोपोइटिन का लेवल बढ़ा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो क्या मिलेगा आपको, मैरो एक्सपांशन, जो हमारे एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस के साइट है, कौन, स्कल बोन, ये फैलता चला जाएगा। एनाटॉमी के साथ कोरिलेट करो बेटा, यू नो स्कल, देयर इज द अवर आउटर टेबल, देयर इज अवर इनर टेबल, और मैंने जब आपको एनाटॉमी की क्लास ली थी तो उस समय मैंने आपको यस जस्ट ट्राई टू कोरिलेट इंटीग्रेट विद द अदर सब्जेक्ट्स, सो जस्ट ट्राई टू रिकॉल अवर very sweet memories from the first year MBBS, this head neck face part. So at that part I taught you this diagram, can you recall beta? Yes, this is the our skull bone scalp part, and at that time I told you the images from the Gray's anatomy. Yes sir, can you recall this diagram? Okay, and can you recall this diagram? Fine sir, so just look, this is the Gray's anatomy. तो बेटा ये आपका बोन मैरो, स्कैल्प के 5 लेयर्स हैं, ये बोन मैरो, यहाँ पर आरबीसीज बन रहे हैं, तो मैंने आपको एक वेन पढ़ाया था, दीज आर द साइट्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, आरबीसी यहाँ पर सिंथेसाइज हो रहे हैं। सो व्हाट आई टोल्ड यू, देयर आर द फ्यू सर्टेन वेन्स, डिप्लोइक वेन, जो डिप्लोइक बोन से आरबीसी को सिंथेसिस करके मेन सर्कुलेशन में लाते हैं। यस, कोरिलेट विद द सेम एनाटॉमी, दिस इज द योर नेशनल मेडिकल कमीशन, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग टीचिंग, दिस इज द योर वर्टिकल इंटीग्रेशन। ओके, हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यहां से आरबीसी बन करके मेन सर्कुलेशन में आते थे। गेटिंग द पॉइंट? ओके, सो व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, यहां पर वही एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि यहां पर सिंथेसिस लोड बढ़ गया तो ये एक्सपांड हो जाएगा। अगर मान लो ये एक्सपांड हो गया तो आपको स्केलेटल डिफॉर्मिटी मिलेगी। यस, द पेशेंट विल प्रेजेंट विथ द अगेन फ्रंटल बॉसिंग, फ्रंटल बोन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे क्योंकि मैरो एक्सपांशन हो गया स्कल बोन का। यस, द जाइगोमेट्रिक मैक्सिला बोन दे विल गेट प्रोमिनेंट, सो देयर इज अवर malar prominence. Okay, so these bones are getting enlarged. Okay sir, also there is the our mandibular enlargement, mandible भी बड़ा हो जाएगा, so there is the mandibular enlargement. Getting the point? So you can look this all the different things, 1 2 and the 3. Fine, now try to understand due to this all the features. Yes, this is special appearance of the face known as hemolytic faces और face. तो आप hemolysis के पेशेंट को, ये आपका है conceptual brainstorming integration with our medicine and pedia. Getting the point?
तो बेटा आप क्लिनिकल में पेशेंट को देखेंगे और देख करके पहचान जाएंगे कि हो सकता है ये पेशेंट एनीमिया का है। और यही एक अच्छे डॉक्टर की पहचान है कि जैसे ही पेशेंट को वो ऑब्जर्व करता है, उसका एनालिसिस स्टार्ट हो जाता है और देख करके हिस्ट्री टेकिंग करके वो डायग्नोसिस बनाता है। सो फ्रंटल बॉसिंग, मलार प्रोमिनेंस एंड मैंडिबुलर इनलार्जमेंट आर सीन जस्ट लाइक आवर सिकल सेल डिसीज। ओके, एंड सी हियर come to the our more integration with yes radiology. so just look here. अब ऐसे पेशेंट में अगर आप एक्सरे लेंगे तो ये कैसा दिखेगा? सो कैन यू ऑब्जर्व दिस इज द एक्सरे। और बेटा ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो, एग्जैक्टली द सेम डायग्राम। ये है आपका इंपॉर्टेंस रॉबिन्स पढ़ने का, ये है आपका इंपॉर्टेंस यस हैरिसन पढ़ने का। आपको लगेगा क्या ये बेवकूफ़ी है, हम इतना टाइम क्यों दे रहे हैं। इन बेटा जब क्वेश्चन आते हैं तो एक ही क्वेश्चन तुरंत बनते हैं अगर आप स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ें तो। ओके, सो एटलीस्ट डू द इमेजेस फ्रॉम द हैरिसन tables from the Harrison and the Robbins. Okay, so just see here, मैरो एक्सपांशन हो गया। तो जब आप स्कल देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक्सरे में ही आपको उस पेशेंट के बाल उगे हुए नजर आ रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज आवर बीटा थैलीसेमिया मेजर, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप जिंदगी भर इस एक्सरे को नहीं भूलेंगे। यस, सी हियर देयर इज न्यूबोर्न फॉर्मेशन, ये न्यूबोर्न फॉर्मेशन को शो कर रहा है। ओके, प्रोड्यूसिंग परपेंडिकुलर रेडिएशन रिसेंबलिंग अ क्रू कट, सुपारी की तरह ये अपीयरेंस आ रहा है। सो दिस इज अवर क्रू कट अपीयरेंस इज सीन इन विच कंडीशन? थैलीसेमिया मेजर इज योर आंसर। थैलीसेमिया मेजर में बेटा आपको ये देखने के लिए मिलता है, नो एक्सक्यूज। दिस इज रेडियोलॉजी कॉन्सेप्चुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग इंटीग्रेशन बाय यू ऑल, बहुत इंपॉर्टेंट। ये रेडियोलॉजी में मिलेगा, मेडिसिन में मिलेगा, ओके, पीडिया में भी आपको देखने के लिए मिलेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज हेयर एंड ऑन अपीयरेंस। ऐसा लगता है कि हेयर जो है एंड्स पर उगे हुए हैं। सो नो एक्सक्यूज विद दिस ऑल द पॉइंट्स। थैलीसेमिया ये दिखा मतलब थैलीसेमिया। याद रखेंगे सिकल सेल में भी, क्योंकि सिकल सेल में भी बेटा इनलार्जमेंट मिल रहा है, बोन मैरो एक्सपेंशन मिल रहा है, तो ये सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। ओके, गेटिंग द पॉइंट? फाइन सर। नाउ ट्राई टू लुक फॉर द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सी हियर, आगे बढ़ते हैं। यस, क्योंकि पेशेंट में आप बार बार रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और हीमोलाइसिस होता जा रहा है, तो अब आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी टूट रहा है, आयरन रिलीज हो रहा है, अब ये आयरन कहां जाएगा आपको पता है? दीज आर बाउंड। ये जो आयरन है ये हमारे बोन मैरो में एब्जॉर्ब हो जाता है, बोन मैरो में स्टोरेज फॉर्म में होता है। ओके, सो देयर इज द आयरन इज गेटिंग डिपॉजिटेड इन द बोन मैरो एंड अदर टिश्यूज। तो अब आयरन ओवरलोड आपको देखने के लिए मिलता है। दिस इज हीमो, हीमो मीन्स ब्लड, क्रोमा मीन्स कलर। कौन देता कलर? यस, आपका आयरन। टोसिस मतलब एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ द आयरन। तो अब इस पेशेंट में आपको आयरन एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा दिखाई देता है। नाउ सी हियर, ऑल्सो ड्यू टू द इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस देयर इज वन प्रोटीन, आई विल टेल यू अबाउट दिस, हेप्सिडिन, वी विल सी। लेकिन ये इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोएसिस लीवर को स्टिमुलेट करता है और लीवर बोलता है आरबीसी कम बन रहा है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आयरन को एब्जॉर्ब करो। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा आयरन का एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है, तो ये भी आपको आयरन ओवरलोड में मदद करता है। तो बेटा मैं आपको हीमोक्रोमेटोसिस पढ़ाऊंगा अलग से चैप्टर, आयरन ओवरलोड, कॉपर ओवरलोड, दैट इज द विल्सन्स डिसीज, जो हम फिजियोलॉजी में लर्न किए थे, विल्सन डिसीज एंड आयरन डिपॉजिशन, अवर हीमोक्रोमेटोसिस पार्ट। ओके, तो ये सारी चीजें देखने के लिए मिलती है और इस कारण से भी यस पिट्यूटरी ग्लैंड में आयरन जमा होगा, स्किन में आयरन जमा होगा, जिसके कारण यस हेयर ब्रॉन्जिंग आपको देखने के लिए मिलेगी, पैंक्रियाज में आपको आयरन जमा मिलेगा, इस कारण डायबिटीज का कंडीशन थैलीसेमिया में मिलेगा, गोनैड्स में आयरन के डिपॉजिशन आपको देखने के लिए मिलते हैं। ऐसे अलग अलग आपको सिम्टम्स देखने के लिए मिलेंगे। ओके, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोर पॉइंट्स। यस,
हियर द मैकेनिज्म ऑफ द आयरन लोड इज टोल्ड। तो आयरन ओवरलोड आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके सो जस्ट सी हियर, किडनी है, नॉर्मल इथ्रोपोइटिन लेवल नॉर्मल कंडीशन में, तो प्रोजेनेटर सेल नॉर्मल आरबीसी, नॉर्मल इरिथ्रोफेरॉन। ओके हमारे आरबीसी के आयरन की ये बात कर रहे हैं, तो आयरन इनकॉर्पोरेशन इनटू द रेड सेल, सब चीजें नॉर्मल है। लीवर जो है वो एक प्रोटीन बनाता है जो आयरन एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में हम देखेंगे, तो आयरन एब्जॉर्प्शन नॉर्मल है। नाउ सी हियर, हमारे इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस में एनीमिया या हाइपोक्सिया होता है, तो इरिथ्रोपोइटिन सिंथेसिस ज़्यादा होता है, आरबीसी के प्रोजेनेटर सेल बढ़ जाते हैं, तो आपका इरिथ्रोफेरॉन जो कि आरबीसी के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है वो बढ़ जाता है। ओके फाइन, तो ये हेप्सिडिन का सिंथेसिस कम कर देता है, इस कारण आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ गया और साथ में आयरन ओवरलोड हो रहा है। कैन यू सी, यहां पर से आरबीसी रप्चर हो रहे हैं, तो इस कारण आरबीसी से आयरन रिलीज होकर के आयरन ओवरलोड कर रहा है। सेम थिंग इज गिवन। फाइन, सो दीज आर द अवर डिफरेंट पॉइंट्स फॉर द ईटियोपैथोजेनेसिस एज वेल एज क्लिनिकल फीचर। तो क्लिनिकल फीचर की बातें हम कल की क्लास में और करेंगे। राइट नाउ एनी मोर पॉइंट फ्रॉम द अवर हर्ष मोहन, वी आर गोइंग टू लुक फॉर दिस। So here you can see the etiopathogenesis given in our Harsh Mohan. ओके बीटा ग्लोबिन चेन का म्यूटेशन शो कर रहा है, हम इसे देख चुके हैं। एंड दीज आर द अवर डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स seen in case of the thalassemia. Okay, so just try to understand our further points. Yes, see here, so you can observe yes, can you see in this image again same thing, हीमोग्लोबिन अल्फा टू बीटा टू चेन आप देख रहे हैं, नॉर्मल इरिथ्रोब्लास्ट। अब अल्फा चेन का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, बीटा चेन का सिंथेसिस नहीं हो पा रहा है, तो अल्फा चेन एग्रीगेट होते चले जा रहे हैं, पॉलीमर बना रहे हैं, तो ये आपका बीटा थैलीसेमिया। और अगर मान लो यस यहाँ पर नॉर्मल सेल की इसने बात की हुई है। फाइन, सो दीज आर द अवर डिफरेंट थिंग्स। yes, I am going to tell you with the simple presentation. See here, our pathogenesis. So you can observe, suppose this is our RBC, and in this RBC there are the 2 alpha chain, 2 beta chain, 2 alpha chain and 2 beta chain। तो ये हमारा HB है। ओके, नॉर्मल RBCs। ओके, you can show here 2 alpha 2 beta chain। ओके, नाउ सी हियर, दो कंडीशन आप देख रहे हैं। अगर मान लो बीटा चेन का सिंथेसिस ना हो तो सिर्फ अल्फा अल्फा चेन मिलेंगे और बाकी जो अल्फा चेन है वो भी इसके साथ जुड़ जाएंगे तो पॉलीमर बन गए, तो इसे हम कहेंगे अल्फा थैलीसेमिया। जबकि दूसरा सिचुएशन, अगर मान लो बीटा चेन ना बने तो सिर्फ ब्लैक ब्लर के जो बीटा चेन है वो बचे रह जाएंगे, वो अकेले तो रहेंगे नहीं, तो वो बीटा के साथ जुड़ करके पॉलीमर बना लेंगे। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज
alpha 4 polymers, and here you can see our beta 4 polymers. Getting the point? तो इसे हम कह रहे हैं अल्फा थैलीसेमिया. अगर पूरे के पूरे अल्फा 4 पॉलीमर मिलेंगे तो वो मेजर हो जाएगा. दिस इज अवर बीटा थैलीसेमिया. डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. और ये जो प्रेसिपिटेट होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं. दे विल डू हीमोलाइसिस. यस, ये क्या करेंगे, मेम्ब्रेन को तोड़ेंगे. दे विल कॉज hemolysis. Getting the point? Okay, so due to this hemolysis the iron is released. Okay, so further thing, the clinical feature and other things we will see our investigation and treatment aspect in next class. So thank you very much. आज हमने एटियोपैथोजेनेसिस को बहुत अच्छे से देखा है. कीप स्टडिंग. ये थैलीसेमिया बेटा अब जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग विथ टू मच केयर एंड पेशेंस. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.